So the data types of MongoDB is like integer, boolean, double, string. Instead of varchar here, it is a string. Then array, null. Null is again a one kind of data type. Object ID is a new data type. Then binary data, date data type. So apart from this also there are other many different data types are available in a MongoDB. So like another example is like minimum and maximum key, timestamp, then code, binary data, regular expression. You are studying now TOC, you know the regular expressions. Then symbols, like in WhatsApp you are using a different kind of symbols, special symbols or a reserved keywords for a different languages. So for every kind of data there is a data type which are available. So next is how to install a MongoDB. I hope everyone has just gone through the videos I have shared in the morning itself. So you should be ready with installation in your Windows. And if you are a mobile user, also I have shared a 2 app links in Google Classroom. So you can use any of them for running the things. Okay, so I'm just keeping the part of like installation that you just have to find out from your the video I have posted. Then in the same presentation you'll find out if you are using a Ubuntu, so what command you have to type for installing a MongoDB. So very simple, only 2 commands you have to type, like sudo apt-get install MongoDB and then sudo apt-get update. So 2 commands you have to use, and to start the MongoDB, this step you have to follow. Always remember, Mongo is working in a client server pattern. So you have to start server first and then you have to start the client, and all the commands you have to type on your client prompt. ये चीज हमेशा याद रखो, MongoDB में 2 चीजें हमको हमेशा लगने वाली है अगर हम एक मशीन यूज कर रहे हैं तो। पहले टर्मिनल पे हमको सर्वर स्टार्ट करना है। ओके, सर्वर को बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टार्ट करके लीव कर दो। ओके, मिनिमाइज कर दो वो विंडो। सेकेंड विंडो में आपको क्लाइंट स्टार्ट करना है, एंड आफ्टर स्टार्टिंग अ क्लाइंट आपके हर कमांड क्लाइंट पे रन होगे। एंड व्हेन यू वांट टू क्लोज योर मशीन, ये भी याद रखो नहीं तो आपका MongoDB का सर्वर क्रैश हो जाता है, आपको री इंस्टॉल करना पड़ता है। जब भी Mongo आपको क्लोज करना है, एंड करना है, ओके, प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म करने के बाद, तो पहले क्लाइंट को क्लोज करो। क्लाइंट को क्लोज करने के लिए एग्जिट कमांड डालना है क्लाइंट विंडो पे, एंड एट योर सर्वर कंट्रोल C प्रेस करना है। तो पहले क्लाइंट बंद होगा फिर सर्वर। स्टार्ट करते वक्त पहले सर्वर स्टार्ट करना है फिर क्लाइंट को स्टार्ट करना है। स्टॉप करते वक्त पहले क्लाइंट को स्टॉप करना है विद एग्जिट कमांड, एंड देन क्लोज सर्वर बाय गिविंग अ कंट्रोल C कमांड। ये मैंने जो वीडियो डाला है उसमें भी ये सब चीज एक्सप्लेन की हुई है। I'll start with a CRUD operation. Okay, so here CRUD के अंदर सबसे पहले एक्चुअल CRUD ऑपरेशन के पहले जो बेसिक डेटाबेस के ऑपरेशन लगते हैं, दैट वी विल सी हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट अ टेबल. सो इंस्टेड ऑफ टेबल आई एम नाउ यूजिंग अ कीवर्ड एज अ कलेक्शन. सो पहले डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, देन हाउ टू क्रिएट अ कलेक्शन इन दैट डेटाबेस, दैट वी विल सी. So very simple 4 command I have added here. Like first command is यूज एंड डेटाबेस नेम. तो जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिख दिया यूज एंड DB1, ये नाम दे दिया. ओके, तो सिर्फ इतने कीवर्ड से 2 चीजें होती है. वो पहले चेक करता है कि DB1 नाम का डेटाबेस अवेलेबल है या नहीं, होगा तो उस डेटाबेस में शिफ्ट हो जाएगा. एंड इफ दैट database is not available, means you have not created, it will automatically create that database for you and shift it to you in that database. So to create and to switch to the database you can use this command. सेकेंड कमांड सिर्फ सिंपल DB कमांड है. DB कमांड से आपको पता चलता है कि कौन से डेटाबेस में आप वर्क कर रहे हो, DB1 में, DB2 में, या कोई और दूसरा डेटाबेस है तो कौन से करंट डेटाबेस में आप वर्क कर रहे हो उसका नाम वो बताता है. शो DBA में DBS इज वेरी सिमिलर टू योर शो डेटाबेसेस इन योर SQL. आपको चेक करना है कि कितने टोटल डेटाबेसेस है जो आपने क्रिएट किए या किसी और ने क्रिएट किया आपके मशीन में. सो शो DBAS विल गिव यू
the list of databases available on your machine and to drop the database, जो भी database आपने create किया है उसको अगर आपको drop करना है, remove करना है, so simple db dot drop database and in the bracket you have to give the name of your database that you want to drop. अभी इतने commands जो मैंने बताया पहले हम इसको करके देखेंगे and then we'll start with the next slide. So now how to like start your MongoDB. So very first click on a start. Then in your search box press cmd. Okay, पहले हम सर्वर को स्टार्ट करेंगे. तो आपने जो इंस्टॉल्ड किया है, ओके, तो अगर मैं आपको बताऊं इन माय सी कॉलन यू विल फाइंड आउट हियर MongoDB. तो मैंने डायरेक्टली सी के अंदर इसको इंस्टॉल किया. अगर आपने प्रोग्राम फाइल्स के अंदर इंस्टॉल किया होगा तो आपको सी कॉलन से प्रोग्राम फाइल्स एंड देन MongoDB पे जाना है. तो MongoDB का Win32 मतलब विंडोज का 32 बिट का वर्जन मैंने 3.2.3 वाला जो वर्जन है MongoDB का वो मैंने इंस्टॉल किया है. ओके, फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखो इंस्टॉल करने के बाद. इंस्टॉल मतलब अगर आपने जिप फाइल ली है तो जिप फाइल को मैंने एक्सट्रैक्ट किया है. एक्सट्रैक्ट करने के बाद फोल्डर दिखेगा, फोल्डर में जाओ, फोल्डर में बिन फोल्डर होगा. बिन में जाके यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई फोल्डर नहीं होता है, मतलब यहाँ पे फोल्डर नहीं होगा. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू राइट क्लिक एंड क्रिएट अ न्यू फोल्डर एंड गिव एनी नेम. हमेशा ये नेम आपको याद रखना है जब आप स्टार्ट करोगे आपका MongoDB. तो मैं सी कोलन प्रॉम्प्ट पे यहाँ पे गई हूँ. ओके, देन आई हैव टू गो विथ MongoDB. ओके, तो बहुत इजी है, पूरा पाथ याद रखने की जरूरत नहीं है. सी कॉलम पे अगर पता है MongoDB तो CD स्पेस MON इतना प्रेस करो, उसके बाद टैब प्रेस करो तो आगे का ऑटोमेटिक वो आपको प्रोवाइड कर देगा. देन CD एंड बिन. बिन के अंदर जाने के बाद हमको उसका सर्वर स्टार्ट करना है. सो टू स्टार्ट द सर्वर देयर इज अ स्पेसिफिक कमांड. ओके, जो कमांड मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, प्लस वीडियो में भी आपको क्लियरली बताया है. ओके, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट जिसमें यहाँ पे सर्वर स्टार्ट करने के लिए कमांड डालनी है आपको MongoD MONGOD स्पेस देना है डैश डैश स्टोरेज ई कैपिटल इंजन इक्वल टू MMAPV1 स्पेस डैश डैश DB पाथ. डेटाबेस का पाथ बता रहे, यानी जो भी डेटाबेस बनेगा क्लाइंट का वो हमारे इस फोल्डर, जो हमने यहाँ पे फोल्डर मैंने बताया था बीन के अंदर जाके मैंने जो फोल्डर क्रिएट किया है SNJB, वही नाम देना है. अगर आपने किसी कुछ और नाम दिया है सो आपको वो नाम यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. सो डोंट यूज SNJB, वॉट एवर द नेम यू हैव गिवन टू योर फोल्डर दैट नेम यू हैव टू यूज देयर. ओके, नाउ सी दैट जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे लास्ट लाइन क्या आई है, वेटिंग फॉर कनेक्शन ऑन पोर्ट 27017. अब यहाँ पे इसके बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो गया है. तो सर्वर, क्लाइंट सर्वर आप CN में पढ़ रहे हो, राइट? तो इसमें सर्वर हमेशा लिसनिंग मोड में होता है, जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को लिसन करता है. सो नाउ इट इज इन अ वेटिंग मोड, इन अ लिसनिंग मोड. इट इज वेटिंग फॉर अ क्लाइंट कनेक्शन रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट मिलने के बाद उसको एक्सेप्ट करता है. ओके, तो यहाँ तक ही खाली हमारा काम है सर्वर का. इसको मिनिमाइज कर दो, ये विंडो को खत्म. ओके, आफ्टर दैट अगेन गो विथ अ CMD, मतलब सेकेंड कमांड प्रॉम्प्ट मैंने स्टार्ट किया. अगेन गोइंग फॉर द सेम लोकेशन MongoD एंड देन बिन. लोकेशन पे जाना है और यहाँ पे सिर्फ जाके आपको Mongo टाइप करना है MONGO, जिससे आपका क्लाइंट स्टार्ट हो जाएगा. कैसे पता चलेगा क्लाइंट स्टार्ट हुआ है? यू विल फाइंड आउट दिस ट्रायंगल, जहाँ पे ही आपको ये ट्रायंगल वाला मिल गया है प्रॉम्प्ट, दैट इज अ Mongo क्लाइंट प्रॉम्प्ट. और अगर आप यहाँ पे देखोगे इसके बाद अगर आपके सर्वर में, तो सर्वर में वेटिंग के बाद यहाँ पे एक लाइन उसने ऐड कर दिया है, कनेक्शन एक्सेप्टेड फ्रॉम द लोकल होस्ट, 1 कनेक्शन नाउ, मतलब एक क्लाइंट कनेक्ट हो गया है. ओके, आपको सर्वर को डायरेक्टली कभी भी क्लोज नहीं करना है. कैसे क्लोज करना है वो मैं बताऊंगी एंड में. अब हमने जो भी कमांड देखी है वो कमांड हम करते हैं वेरी सिंपल. यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया शो DBS, ओके, इसमें सेमीकोलन. यस, हेलो मैम, हम जैम सर्वर यूज कर सकते हैं क्या? रेडीमेड सर्वर है. देखो आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो, बट इन योर एग्जामिनेशन यू हैव टू डू द प्रैक्टिकल इन योर कमांड प्रॉम्प्ट इटसेल्फ एक्चुअली.
आप प्रैक्टिस के लिए ओके यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर एग्जामिनेशन होता है तो जो इंस्टॉल रहेगा हमारे यहाँ पे जैसे उबंटू पे, वहां पे आपको उसको यूज करना पड़ेगा। ओके, जैम्प यस इज अ मैम। गुड वन ऑप्शन, बट यू हैव टू डू दिस। तो यहाँ पे देखो सेकेंड वाला हमने लिया है शो डीबीएस। अभी मैं आपको है ना एक सिमुलेटर भी बताऊंगी, अगर आपको इंस्टॉल नहीं करना है मोंगोडीबी, तो बाय यूजिंग दैट सिंपल सिमुलेटर यू कैन रन ऑल दिस कमांड, जिसमें आपको सर्वर स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली क्लाइंट का प्रॉम्प्ट मिलता है और आप डायरेक्टली कमांड को करना स्टार्ट कर सकते हो। बट उसमें खाली इशू क्या है कि आपने जो कलेक्शन बनाया है ये हमेशा के लिए स्टोर नहीं होगा, इट्स अ सिमुलेटर। तो जैसे आपने वो सिमुलेटर क्लोज कर दिया, आपने जितना भी काम किया होगा वो चला जाएगा। तो उस दिन का सिर्फ उस दिन के लिए होता है, दैट दिस इज ओनली द ड्रॉबैक ऑफ सिमुलेटर। सो इसके लिए इंस्टॉलेशन इज अ बेस्ट ऑप्शन। सिर्फ मोबाइल यूजर्स के लिए मैं वो प्रेफरेबल करूंगी। तो शो डीबीएस कमांड से उसने बताया देयर इज वन डेटाबेस। हमेशा मोंगोडीबी खुद का एक डेटाबेस क्रिएट करता है लोकल नाम का, यानी आपके लोकल मशीन में एक वो डेटाबेस क्रिएट करता है आपके यूज के लिए। सेकेंड, अगर मैंने डीबी कमांड दिया तो वो बताता है करंटली आप कौन से डेटाबेस में वर्क कर रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट एक टेस्ट नाम का डेटाबेस होता है जिसमें आप हमेशा वर्क करते हो जब तक आप किसी और डेटाबेस में स्विच नहीं होते हो, अगर आपने कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं किया है तो। Then next, if you want to create a database, very simple, use a keyword use, और यहाँ पे मैंने डाल दिया suppose db1। तो उसने मुझे बोल दिया यू हैव स्विच्ड टू db1। अब अगर मैं db ये कमांड दूंगी तो इंस्टेड ऑफ टेस्ट उसने बताया नाउ यू आर इन अ डेटाबेस db1। So likewise, you can create a database, you can switch into that database. So whatever the collection or table you are creating, that will get stored into your that database. आपको अगर database drop करना है तो drop, and there is a command like db dot, yeah, so db dot drop database. So db dot drop database, and in bracket I have given the name as db1. Okay, I have to check out what is db1 dot. Okay, I will just check out why this command is not working. Next session में बताती हूँ कि database को drop कैसे करना है. So 3 commands for database: show dbs to show the list of databases you have created, db second only simple db command जो आपको बताता है आप कौन से database में currently work कर रहे हो. Second, to create a database you have to use a command like use and db1. That's it. Now how to create a table or how to create a collection. So again it's very simple. So either you can create a collection just by giving a command like db dot create collection और collection का नाम आप ब्रैकेट के अंदर डाल दो. ओके, एंड अगर आपको देखने के आपने कितने कलेक्शंस अब तक क्रिएट किए हुए, व्हाट आर द डिफरेंट कलेक्शन यू आर हैविंग इन योर डेटाबेस, सो यू कैन गिव अ कमांड लाइक शो कलेक्शंस. जैसे हम बोलते हैं शो टेबल्स इन एसक्यूएल, ऐसे यहाँ पे हमको लिखना है शो कलेक्शंस. Either you can create a collection by giving this command or you can create a collection by giving the another command जिसमें हम लिखते हैं db dot collection का नाम डायरेक्टली लिख दो जो भी आपको क्रिएट करना है, जैसे स्टूड डॉट इंसर्ट. तो डायरेक्टली आप किसी कलेक्शन के अंदर कुछ रो को इंसर्ट करते हो जैसे ही, तो वो चेक करता है कि वो नाम का स्टूड नाम का कलेक्शन अवेलेबल है कि नहीं डेटाबेस में. है तो इंसर्ट करेगा, नहीं है it will automatically create that collection or that table for you and then it is going to insert that record into that table. So कोई भी collection create करने के लिए either you can create it or just by inserting any row that collection will be created in your database. And again to drop the
collection, very simple, it's a db dot name of the collection and then drop. So अगर if I want to find out the कोई collection already है कि नहीं, so here show collections. ओके तो इसमें कुछ भी आउटपुट देखो, इसमें अगर कुछ डेटा नहीं तो ऐसे वो नहीं दिखाएगा एम्प्टी सेट है या कुछ है, खाली नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दे देगा. दैट मीन्स देयर इज नथिंग टू शो टू यू. ओके नाउ इफ आई वांट टू क्रिएट अ कलेक्शन, सो सिंपल, अगर मैं डायरेक्टली रो इंसर्ट करके भी क्या कर सकती हूँ, कलेक्शन को क्रिएट कर सकती हूँ. सो इफ आई एम यूजिंग db डॉट, मुझे नाम देना है कलेक्शन के लिए, स्टूड, एम्प्लॉयज, कस्टमर, एनी नेम यू वांट टू गिव जस्ट यू कैन यूज. सो db डॉट स्टूड डॉट मैंने यहाँ पे डाल दिया इंसर्ट. इंसर्ट इज अ इनबिल्ट फंक्शन, तो इसके लिए आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट यूज करना है. एंड इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट एवरीथिंग दैट यू आर गिविंग अ डेटा दैट कमिंग इन अ कर्ली ब्रैकेट. सो इंसर्ट इज अ फंक्शन. सो डीबी मीन्स डेटाबेस, जो भी करंटली डेटाबेस है वो, तो डीबी ही यूज करते हैं आप, कोई भी डेटाबेस में रो डीबी यूज करना है. डॉट जो भी टेबल आपको क्रिएट करना है, जो भी कलेक्शन आपको क्रिएट करना है उसका नाम डाल दो. डॉट इंसर्ट, इंसर्ट फंक्शन है, इसके लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट मैंने डाल दिए. और इसके अंदर जब आपको डेटा स्टोर करना है, वन डॉक्यूमेंट, वन रो को हम बोल रहे हैं वन डॉक्यूमेंट स्टोर करना है. सो वन कर्ली ब्रैकेट इंडिकेट यू आर स्टोरिंग अ वन डॉक्यूमेंट इनसाइड दैट कलेक्शन. और डेटा हमेशा स्टोर होता है इसके अंदर की एंड वैल्यू पेयर में. Always it stores the data in the form of key and value, हमेशा याद रखो. तो की मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज आर नंबर, ओके, उसकी वैल्यू मैंने डाल दी 1, दैट्स इट. कोलन से इसको सेपरेट किया जाता है. कोलन के लेफ्ट में जो है दैट इज योर की, कोलन के राइट में जो है दैट इज योर वैल्यू. सो रोल नंबर इज अ की एंड 1 इज अ वैल्यू. फिर सपोज सेकेंड मैंने डाल दिया नेम कोलन, ओके और यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया, जो भी नाम आपको स्टोर करना है. ओके सो ओनली 2 वैल्यूज आई हैव स्टोर्ड. आई हैव जस्ट क्लिक प्रेस द इंटर. ओके तो उसने बता दिया 1 रो इंसर्ट हो गया है. ओके अगर मुझे लग रहा है और एक रो इंसर्ट करना है, अब मैं इसके बाद शो कलेक्शंस करके देखती हूँ. सो यू विल फाइंड आउट, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे स्टूड नाम का कलेक्शन हमने इंसर्ट रिकॉर्ड करके क्रिएट किया तो उसका नाम यहाँ पे आ गया स्टूड. ऑटोमेटिकली इसके साथ और एक कलेक्शन क्रिएट हो गया है दैट इज टू सिस्टम डॉट इंडेक्सेस. जब भी आप कोई कलेक्शन क्रिएट करते हो, MongoDB ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ प्राइमरी की यूनिक इंडेक्स ऑन दैट टेबल. ओके कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं बताती हूँ. हम जो डेटा हमने स्टोर किया उसको शो करते हैं. SQL में whenever you want to show or display the data of any table, we are using a query select star from table name. So here if you want to show the data of any of the collection, you have to use the query like db dot name of your table or name of your collection that is stored डॉट डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे एक रेडीमेड फंक्शन है दैट इज फाइंड. सो यू कैन सी हियर कि हम लोगों ने तो यहाँ पे जब इंसर्ट किया था, ओके सो इंसर्ट करते वक्त तो मैंने सिर्फ 2 कॉलम्स इंसर्ट किए थे, रोल नंबर एंड नेम. लेकिन जब हमने इस डेटा को शो करने का ट्राई किया तो रोल नंबर की वैल्यू प्लस नेम की वैल्यू तो इसने दिखाई. उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैव एडेड इटसेल्फ 1 कॉलम. हमने ऐड नहीं किया, ये MongoDB ने ऐड किया. जो कॉलम को उन्होंने क्या बोला है, नाम ऑटोमेटिक उसने दिया अंडरस्कोर ID. सो दिस इज एन बाय डिफॉल्ट इंडेक्स प्राइमरी की और की विच इज क्रिएटेड बाय MongoDB व्हेनेवर यू आर इंसर्टिंग एनी डॉक्यूमेंट और रो. तो हर डॉक्यूमेंट के लिए एक ID वो खुद क्रिएट करता है. ओके इट इज एन ऑब्जेक्ट ID and this is a very huge value. You will find out it is a 12 byte value which is in the form of hexadecimal. ये 12 बाइट्स किसके लिए यूज होते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें कि एग्जैक्टली क्या होता है. ये 12 बाइट्स में आपका मशीन का आईडी होता है, सर्वर का आईडी होता है, टाइम स्टैम्प होता है. क्योंकि अगर आप देखोगे फेसबुक में आप जैसे ही कुछ मैसेज डालते हो, हर मैसेज के साथ डेट और टाइम अटैच होता है. आपने व्हाट्सएप पे जो मैसेज डाला, कौन सा टाइम पे मैसेज डाला वो आता है. सो इट्स वेरी सिमिलर टू लाइक दैट व्हेनेवर यू आर इंसर्टिंग एनी रो,
तो टाइम स्टैम्प अटैच होता है, कौन से डेट कौन से टाइम पे उसने वो रिकॉर्ड इंसर्ट किया है वो स्टोर होता है, बट ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में है, सो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड लाइक व्हाट इज एग्जैक्टली दैट। ओके, तो अभी हम और एक रो इसमें स्टोर करते हैं। सो यहाँ पे मैंने अभी न्यू रिकॉर्ड स्टोर कर रही हूँ जिसमें रोल नंबर 2 डाल दिया मैंने, ओके, नेम डाल दिया एंड कॉमा करके और एक वैल्यू डाल दी उसकी ईमेल की। ओके, अब ये स्ट्रक्चर लेस स्कीमा लेस है, मैंने बताया नहीं कौन से कॉलम है, तो आप कोई भी कॉलम ले सकते हो। फर्स्ट रो, फर्स्ट डॉक्यूमेंट में 2 कॉलम, सेकेंड डॉक्यूमेंट में 3 कॉलम, थर्ड डॉक्यूमेंट में आपको लग रहा है कि 10 कॉलम चाहिए, सीक्वेंस मुझे उल्टा पुल्टा चाहिए, मतलब पहले नेम लेना है फिर रोल नंबर लेना है। हर डॉक्यूमेंट ये दूसरे डॉक्यूमेंट से कंप्लीटली डिफरेंट होता है, so there is no structure, so still it is going to give you the no error। okay, यहाँ पे मैंने डाल दिया gmail.com। so one more document is inserted। अब जब मैं find कर रही हूँ, so you can find here कि सेकेंड वैल्यू भी स्टोर कर दी है उसने। ओके, और सेकेंड वैल्यू के साथ अगेन ऑब्जेक्ट आईडी ऐड किया है। ऑब्जेक्ट आईडी में अगर आप चेक करोगे तो फर्स्ट कुछ वैल्यू सेम है कि बिकॉज ऑल दिस रिकॉर्ड्स आर स्टोरिंग इन माय मशीन, सेम मशीन, तो मशीन का आईडी यहाँ पे क्या है, सेम है। ओके, लेकिन टाइम डिफरेंट है, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो है ये टाइम रिलेटेड वो थोड़ी सी चेंज हुई रहेगी। और लास्ट में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे अगर सी बी था, ओके, ये सीक्वेंस सीरियल नंबर होता है, तो सी बी, बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा हेक्साडेसिमल में, तो नेक्स्ट रो के लिए खाली लास्ट वाली वैल्यू से क्या किया, चेंज किया है। सो फॉर यू कैन अंडरस्टूड द सीक्वेंस ऑफ दैट मोंगोडीबी। अब अगर मुझे लग रहा है और कोई नया रिकॉर्ड स्टोर करना है जिसमें मैं सीक्वेंस को चेंज करती हूँ, ओके, जिसमें मैं फर्स्ट नाउ आई एम गोइंग टू स्टोर फर्स्ट नेम, रोल नंबर बाद में मुझे डालना है, पहले नेम डाल दिया, फिर आर नंबर की वैल्यू डाल दी। ओके, दैट्स इट। स्टिल इट हैज नॉट गिवन एनी एरर एंड ही हैज इंसर्टेड दैट डेटा, क्योंकि कोई स्कीमा नहीं है। सो थर्ड रो भी इंसर्ट हो गया है। थर्ड रो के लिए अगर लास्ट वैल्यू आप चेक करोगे तो यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे डी था, तो इट्स अ सीरियली इट इज स्टोरिंग दैट data and first some values are again common, middle some values are again common। so कुछ ही पार्ट जो है डेटा का वो आईडी का जो है वो चेंज होता है। so here we have seen how to create a collection by inserting a record, how you can insert a record by changing a sequence, it is stored in the form of key and value pair, you can check out the data inserted into your table by giving a find command, simple db dot stud dot find command, and when you find, you will find a new column is added in your every document, every row, that is an underscore id column, which is an primary key or unique value column get added to every document। यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो।